Yes, sir, but due to my insufficient storage, some of the files are not supported in my phone, so I'm sending it lately. So you don't have a laptop? सर लैपटॉप है बट खराब है. Okay, okay. I think it is required now because initially what we thought was that this lockdown is temporary and 2-3 months everything will be normal. But now it seems that whole year will go like this. Schools will start, but still we have to maintain all the material in the soft copies, so that we need proper storage. So you need your laptop or your computer. Also, you need to have knowledge about Google Drive. You guys know about Google Drive? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. So whatever you save on your computer, you can directly sync it with Google Drive, so it directly gets saved over there. So you can do something like that, and you can save everything whatever I share with you or school shares with you. Sir, Yes. sir, which software do you use to record your screen? I use TechSmith Snagit. Okay, sir. Yeah, so I've purchased the paid version because I used some free versions earlier. Do you see in the bottom of your screen? Can you see my screen? Yes, sir. Yeah, so it's written TechSmith Snagit Recorder. I used to use some free softwares earlier, but many times it happened that I recorded the whole lecture, and suddenly when I stopped the recording, the whole lecture was gone. Like it did not record. So my whole hard work of 1.5 hour was just it it got uh, somehow it got deleted. Sir, Yeah. sir, can you press the key Windows plus G? Hey, what you're hacking my computer or what? No, sir. No, sir. No, sir. What is Just it? try once. But what is Sir, it? Tell me. in my computer, when I press Windows plus G, there is an that one page comes of recording. We can mute ourselves, we can record ourselves, and like that. Screen recording. Yes, sir. Okay, let me try it. Okay, my recording is already going on. So what I'll do is I'll try it later. Okay, sir. Windows plus G, you said, right? Yes, sir. Thank you, Neet. This is very important information. So, Thank Neet, you, sir. you are good with this technical stuff. You know many Sir, things. Last time also you taught me about blurring the background. yes, sir. That I know. That is very nice. Neet, can you come on cam and show everyone that how you blur the background? I don't know how many of you know, but this is Sir, really now interesting. I cannot do You don't because have I am cam? not on my laptop. No, no, I have cam, but I am not on my laptop, and that is only compatible for laptops. Oh, okay, okay, Nothing, okay. nothing for phones. Okay, okay, okay. Great, great, great. Okay, I got it then. Nice. Actually, हेलो there is हेलो सर one. Yeah. हेलो सर मैं नीत की मम्मी बोल रही हूँ जरा काम था आपसे बीच में टोक रही हूँ आपको हाँ, हाँ, प्लीज बोलिए. हाँ मैं क्या बोल रही थी आप आपसे थोड़ी बात करनी थी मैं बाद में बात करूँ या अभी बात करूँ करिए ना बात, नो प्रॉब्लम. तो बाकी सब सुनेंगे तो उसको बुरा लगेगा नहीं लगने दीजिए ना बुरा, उसमें क्या है. एक्चुअली क्या है उसको ये बोल रहे हैं इसको क्या बोल रहे थे ना अभी टेक्निकल के इसमें आपको ज्यादा पता है टेक्निक हाँ, के बारे हाँ, में हाँ. किया होगा के तो मैं जी, इसको वही बोल रही हूँ कि साइंस लेके कुछ उसमें आगे बढ़ो जी, तो ये जी. भाई साइंस पे जाना नहीं चाहते कॉमर्स ही लेना चाहते हैं क्यों ऐसा है नीत बेटा? आपको लगता है तो साइंस डिफिकल्ट है? आप नहीं उसको पता नहीं अभी वही मैं बोला कि सर से हम लोग ज्यादा क्लोज हो जाएंगे सर हाँ, से हम लोग थोड़ा गाइडेंस देंगे ऐसा बोल हाँ, रही थी तो मैं मैं उसको मैं तो बता आप सकता थोड़ा हूँ उसको उसको. हाँ तो आप उसको ज्यादा अप्रिशिएट करो इसके लिए ठीक कि है, आप ठीक है. करो उसको कि नहीं वो करेगा वो तो प्लान ये है कि दिवाली के बाद हम लोग क्लास ओपन करने वाले हैं. अरे वाह अच्छा है हाँ हाँ, हाँ तो ये मेरा प्लान है. मतलब हमको परमिशन भी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से. शायद मुझे लगता है कि स्कूल्स में भी कुछ बच्चों को बुलाएंगे, तो हम भी क्लास हाँ ओपन बोल रहे करेंगे. थे
18 नवंबर से बोल रहे हमारे स्कूल के टीचर लोग, ऐसे कंफर्म नहीं है। 18 नवंबर तक हम लोग को बोला था ऐसा, 18 नवंबर से हाँ स्टार्ट हो जाएंगे मूवी। हाँ, तो यही हम लोग भी यही सोच रहे हैं। तो जब पर्सनली मैं बुलाऊंगा सबको, बच्चों को, तो मैं ये हाँ सारी हाँ, बातें, काफी बातें करूंगा मैं उनके साथ। वही वही वही। इसमें क्या इन लोगों को कुछ ये एक साल ऐसा गया कि समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना बिल्कुल करे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, वो मैं वही। पर्सनल गाइड मुझे भी उनको करना है। बट यही है कि अभी हम्म। हमारे बीच में जो गैप आ गया है, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो हम्म। गई है, क्लासरूम में मिल नहीं हाँ पा हाँ रहे, तो ये काफी, एज अ टीचर मुझे भी थोड़ा सा बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगता है कि बच्चों से मिल नहीं पाते और फिर उनको गाइड करना है। बहुत बड़ा चैलेंज है सही ये बात है, मेरे लिए। बट इसलिए सही मैंने बात है, डिसाइड सही किया बात है कि पोस्ट दिवाली कंटिन्यू होगा ये ऑनलाइन सेशंस, बट फिजिकली भी हम मिलेंगे। पहले जो है। ये ये था अच्छा कि है ना फिर। हाँ, मीटिंग नहीं हो रही थी फिजिकली, वो मुझे आई थिंक अभी थोड़ा चेंज करना है। एंड आई वांट टू हाँ कॉल हाँ। अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स एट अ टाइम इनकी बैच से, और अच्छा अच्छा। फिर उनको थोड़ा सा गाइडेंस देना है, उनके बारे में जानना है मुझे, क्या कर रहे हैं ये लोग पूरा दिन, कैसे काम कर रहे हैं। सही बात है। तो इसके लिए सही जब बात मैं है। बुलाऊंगा तो मैं पर्सनली ये बात करूंगा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, वही वही। जी हम लोग को जी, आपके ऊपर ही ट्रस्ट बहुत है। डोंट आप वरी ही मैम, करोगे आई जो विल टेक केयर, आई विल करोगे। टेक केयर। ओके ओके सर, थैंक यू सर, ओके नीचे बात कीजिए। ओके ओके। Thank you, sir. नीत, डिड यू फील ऑकवर्ड? No, sir. Okay, no problem. Okay, I want to talk to Shreya. Shreya, you there? Yes, sir. श्रेया, थोड़ा लाउडली बोलोगे प्लीज? Yes, sir. हाँ, अब सुनाई दे रहा है। श्रेया, क्या हो गया फिर से, वो टेम्पो डाउन जा रहा है क्या? हाँ सर। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? टेल मी। Sir, I just start studying and I just feel like I can't sit for more than half an hour. वाई बेटा, वाई? Even I don't know. I can understand how you're feeling and what you're going through, but see, we cannot help this situation. This is very weird situation. But ये बात ऐसी है कि ये जो feeling है, a normal student also goes through it, even if it is not a pandemic or a lockdown time. नॉर्मल बच्चे जो लास्ट ईयर तक, तुम भी लास्ट ईयर भी तुमने ये सेम फीलिंग से गए होंगे, बट सी लास्ट ईयर यू हैड सो मेनी, यू कैन से, कमिटमेंट्स, जैसे स्कूल जाना है, टाइम पे जाना है, क्लास जाना है, सो यू हैड लॉट ऑफ प्लेसेस टू बी एट लास्ट ईयर। अब ये साल तुम्हारा एक चीज अच्छा है कि यू डोंट हैव टू ट्रैवल, सो दैट टाइम यू कैन रिलैक्स। मतलब वो जो ट्रैवलिंग टाइम है या फिर जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तुम्हें, थोड़ा तो रिलैक्स कर सकते हो। बट आई फील दैट इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर रूटीन ना, तो दिस विल नॉट वर्क आउट। So you cannot sit for more than half an hour, you said. See, this problem everyone goes through, but the problem is that you don't have a proper schedule. If you have a schedule ना, तो you know कि मुझे आगे क्या करना है। शेड्यूल नहीं है तो हम क्या करते हैं पता है, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते रहते हैं 2 घंटे 3 घंटे, ये नहीं करना है। यू डोंट हैव टू डू दैट। यू हैव टू गिव योर सेल्फ टास्क कि मुझे अभी 1.5 आवर ये टास्क करना है, फिर मैं रिलैक्स करूंगी, फिर 1 आवर मुझे ये टास्क करना है, फिर मेरा ऑनलाइन क्लास है, फिर मैं 1 घंटा खेलूंगी। मतलब यू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव अ शेड्यूल, एवरीथिंग फिट्स इन प्रॉपरली। और ये मैंने ना अलग अलग बच्चों को इस बैच में पर्सनली भी समझाया हुआ है, अलग अलग टाइम पे, बिकॉज देयर पेरेंट्स दे केम अप टू मी विद देयर इश्यूज दैट कुछ भी प्रॉपर शेड्यूल नहीं है। सो आई एम अगेन टेलिंग दैट इफ यू नीड दैट काइंड ऑफ हेल्प, आई कैन डेफिनेटली गिव यू। ठीक है, बट एक ही चीज मैं तुम्हें अभी बोलना चाहूंगा कि इफ यू डोंट हैव अ शेड्यूल ना, इफ यू डोंट हैव प्लानिंग कि कल मुझे क्या क्या करना है, कितने बजे करना है, कितने टाइम पे करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, ये सारे फिक्स टाइम होने चाहिए। इफ यू डोंट हैव फिक्स टाइम एंड इफ यू वर्क रैंडमली ना, तो क्या होगा पता है, यू विल एंड अप वर्किंग मोर देन यूजुअल एंड यू विल फील दैट यू हैव नॉट वर्कड एनीथिंग, बिकॉज तुम एक जगह पे बैठी रहोगी बट तुम्हारी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी जो है वो इतनी नहीं होगी।
So that is not right actually. So you should work in a smart way where you know that you just have to give 1 hour to maths practice, not more than that. ठीक है, तो 1 hour में काम होगा. नहीं तो क्या होगा कि तुम रैंडमली मैथ्स लेके बैठोगी बिकॉज मम्मी ने बोला है या बिकॉज एग्जाम आ रही है. तो 1 hour में कुछ काम होगा ही नहीं. आई एम सॉरी, 1 hour तो छोड़ो, वो तुम 2-3 घंटे लेके बैठोगी, लेकिन उतना ही काम होगा जितना आधे 1 घंटे में होता है. So what you are doing is you are spending much of your time but doing less work. And many of you they go through this. They do this way. So don't do that. Regular काम करो, कम टाइम के लिए करो, रेगुलरली करो, रोज करो. होमवर्क करना है तो रेगुलरली करो. ऐसा नहीं कि सबमिशन के एक दिन पहले लेके बैठे और पूरा दिन फिर पक गए, फिर नेक्स्ट डे ना बुक हाथ में लेने का मन नहीं करता. ये नहीं होना चाहिए. दैट इज नॉट द राइट वे. इफ यू डू इट लाइक आज मैंने कुछ वीडियो डाला या होमवर्क दिया है, आज थोड़ा करो, थोड़ा वीडियो देखो, कल थोड़ा करो, परसों थोड़ा करो, 3 दिन में खत्म हो जाएगा काम. तुम क्या करोगे, 4th डे लेके बैठोगे और पूरा एक साथ खत्म करने की कोशिश करोगे. बहुत बच्चे करते हैं यहाँ पे. दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क आउट. फिर क्या होगा पता है, सब साथ में आ जाएगा काम. सो यू नीड टू प्लान प्रॉपरली. श्रेया, आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, sir. हाँ, और ये सिर्फ श्रेया के लिए नहीं है, सबके लिए है. दिस इज फॉर एवरीबॉडी. Sir, Yes, Neet, please tell me. sir, my sister was asking for her paper. What paper बेटा? सर क्वेश्चन पेपर उसका टेस्ट है ना 8th का. हाँ, तो मेरी ग्रुप में बहन डाला बोल नहीं रही है. थी. नहीं मैम, सर नहीं डाला, मेरी बहन रुको बोल रुको रही रुको है. रुको 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 रुको. I will call Sonali right away and she will put it. Yeah, please. अभी अभी डाल देंगे, ठीक है? उसको बोलो अभी डाल देंगे. ओके सर, थैंक यू सर. आओ. सर एक्चुअली ना मेरे साथ भी ऐसा होता है कभी कभार कि मतलब ऐसे हम पढ़ने बैठे और बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है कि नहीं थोड़ी देर बाद मतलब यूजुअली लॉकडाउन में तो बहुत ज्यादा हो रहा है. I know. मतलब मैथ्स करने हाँ. एज पर माई इंटरेस्ट मैथ्स मेरे को पसंद है ज्यादा, मतलब बाकी हाँ. सब्जेक्ट से ज्यादा. हाँ. क्योंकि मैथ्स में मतलब ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ सोचना पड़ता है. तो मतलब मैथ्स करने बैठूंगी तो खुशी खुशी बैठती हूँ, बट बाकी सब्जेक्ट ऐसे मतलब बुक लेके बैठूंगी, इधर उधर देखूंगी, ऐसा बहुत होता है सर. और मतलब मैं दिन में जो टारगेट बनाती थी, नहीं आज मुझे 2 या 3 लेसन कंप्लीट करने, वो मैं नहीं कर पाती. तो मैं इसके लिए क्या करूँ? मैं क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं तो मैं क्या करूं. किसी ने सुना है गाना? यशराज मुखाटे का कोई फैन है यहाँ पे? नहीं सर. यस सर. मस्त है वो, अच्छा लड़का है, मस्त करता है. तो सानिका ने जो अभी डायलॉग बोला मेरे पास रिकॉर्ड हो गया. सानिका, इसका एक रिमिक्स बनाएंगे हम लोग. मैं क्या करूं. यार कैम तो ऑन करो, तुम लोग के रिएक्शन देखने हैं मुझे. आज बहुत दिनों बाद हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है एंड दैट्स अ गुड थिंग. और सुबह उठना भी नहीं पड़ा आज. सो यू ऑल माइट बी हैप्पी कि सुबह 6:30 बजे टॉर्चर नहीं हुआ आज. सानिका, प्लीज ऑन योर कैमरा. हाँ सर, बस 1 मिनट. तो सानिका, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ना, कि तुम्हें मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए तुम कर लेती हो. बहुत अच्छा. एक्चुअली बहुत लोग मैथ्स को हेट करते हैं, बट तुम्हें अच्छा है, मैथ्स अच्छा लगता है, तुम कर भी लेती हो. बट दूसरे सब्जेक्ट्स में तुम्हें इश्यू आता है. देखो, दूसरे सब्जेक्ट्स मैं खास करके बोलूँगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो मेरे सब्जेक्ट है मैं उसकी बात करूँगा. सो फिजिक्स और केमिस्ट्री में इफ़ यू गो and start reading the chapter, it will get really boring, man. It will get really boring. ठीक है? And that is necessary at point of time, when you have to know the topic. But that has been already done while, ये जो मेरे लेक्चर होते हैं, ये जो मैं रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, what is that? ये कौन सा फॉर्मेट है? That's a very hit format right now. इसको बोलते हैं ऑडियो बुक. Have you heard about ऑडियो बुक?
यू नो ऑडियो बुक क्या होता है? ऑडियो बुक इज अ बुक विच इज नरेटेड बाय समबडी. मतलब कोई तुम्हें बुक बोल रहा है, सुना रहा है. सो व्हाट यू डू इज यू डोंट हैव टू रीड इट. You just have to, while you're driving, while people do that. एक पॉडकास्ट बोलते हैं उसको, पॉडकास्ट. You know about podcast, audio books. These are very very famous modules now. तो इसमें क्या होता है, बहुत ही बोरिंग बुक्स होती है, लोगों के पास पढ़ने का टाइम नहीं होता. तो while doing different tasks, while cooking, while cleaning the house, while driving, while jogging, while doing exercise, people listen to these books. और तुम देखोगे इन हायर स्टडीज जितने भी लोग एमबीए करते हैं या फिर हायर स्टडीज करते हैं, मास्टर्स करते हैं, ये लोग ऐसी ऑडियो बुक्स पढ़ते हैं. मतलब ऑडियो बुक सुनते हैं, तो पूरी बुक कोई नरेट कर रहा है. सो मेरे जो वीडियोस है ना, दैट इज ऑलरेडी द नरेशन ऑफ द बुक. और उसमें साथ में क्या है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी मैं दे रहा हूँ. मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कोई पार्ट, या फिर मैं कुछ तुम्हें बता रहा हूँ कुछ सॉल्व करके, या फिर कुछ स्क्रिबल कर रहा हूँ. So that engages you. So you know, after watching these videos, the point of reading the chapter all over again, I think makes no sense, because you already gone through that. ठीक है? So वो क्या अब हो जाएगा, अभी तुम्हारे लिए वो बोरिंग टास्क हो जाएगा. So what I suggest you, all of you, is that once a chapter is done, you have watched the videos, you try to solve some random questions based on that chapter. सो सपोज इट्स अ केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री में खास करके लोगों को बहुत तकलीफ होती है. सो इफ इट इज केमिस्ट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में तुमने होमवर्क किया मेरा कंसाइज बुक का, तो तुमने वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए, टेक्स्ट बुक के पीछे की फाइनल एक्सरसाइज सॉल्व कर ली. अब विराफ दलाल ट्राई करो, विराफ दलाल की एक्सरसाइजेस सॉल्व करो, इतनी बड़ी एक्सरसाइजेस है उसमें. So you don't revise the chapter by reading the chapter. You revise the chapter by solving its exercises. Are you getting it? That is the right way of revising. Otherwise, it will get really boring, man. वो इतनी information है कि तुम अगर पैसिव उसको पढ़ते रहे ना, तो तुम्हारे अंदर घुसने नहीं वाली information. ऊपर से तुम बोर हो जाओगे और तुम्हें लगेगा कि क्या कर रहे हैं यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो केमिस्ट्री बोरिंग है. सो यू मेक इट रिवर्स. तुम क्वेश्चन के आंसर निकालो. मैं तुम्हें लिखने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, पता है, सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ. सिर्फ उसके आंसर निकाल के मार्क करके रखो कि इसका आंसर ये, इसका मिल गया. आधे तो केमिस्ट्री में तुम्हें पता है, इफ यू सी केमिस्ट्री का बोर्ड का जो पेपर, दैट इज यू कैन से 70 to 80% ऑफ द पेपर इज ऑब्जेक्टिव. तुम्हें पता है बोर्ड की एग्जाम में केमिस्ट्री का जो रिटर्न पेपर होता है, उसको लिखने के लिए कितना टाइम मिलता है? 10th ICSE को 2 hours मिलते हैं. 2 hours. ठीक है. और मैंने जितने भी बच्चों से बात की है आज से पहले, जितने भी लोगों ने बोर्ड के एग्जाम केमिस्ट्री के दिए हैं, एंड ऑल टॉप स्कोरर्स, उन्होंने 80 में से 70 प्लस 75 प्लस मार्क्स स्कोर किए. वो लोग बोलते हैं केमिस्ट्री का पूरा पेपर मैं अगर टाइम लेके भी लिखूं ना, तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता. 1 hour इज टॉप्स. 45 minutes 1 hour में पूरा पेपर लिख के हो जाता है. ऐसा क्यों होता है पता है? बिकॉज द होल पेपर इज ऑब्जेक्टिव टाइप. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, 70 to 80% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है. मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे तो वो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव बेस्ड. तो अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस है, तुम विराफ दलाल की एक्सरसाइज सॉल्व करोगे फटाफट, जो भी नेम द फॉलोइंग है, या फिर आंसर द फॉलोइंग है, या फिर बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन है, या फिर स्टेट द रिजल्ट, स्टेट द ऑब्जर्वेशन, नेम द कलर, ये सारे क्वेश्चन है, तो ये तो फटाफट सॉल्व कर सकते हो यार तुम. सो यू डोंट रीड द चैप्टर नाउ ऑन. सानिका, यू लिसनिंग टू मी? Yes, sir. You don't have to read the chapter. You don't have to. You just have to solve exercises, as many as you can. कंसाइज हो गया, विराफ दलाल करो. विराफ दलाल हो गया, कंसाइज फिर से करो. कंसाइज फिर से हो गया, फिर से विराफ दलाल करो. एक ही चैप्टर. और जितनी बार तुम ये सॉल्व करोगे ना, अच्छा, फिर पास्ट 10 years के क्वेश्चंस करो. जितनी बार तुम ये हाँ करोगे ना, सर, हमारी मैम हाँ. बोलती है कि सेक्शन ए का मतलब साइंस का जो सेक्शन ए होता है केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो में, वो पूरा लास्ट 10 years से आता है. एग्जैक्टली. कहाँ से देंगे यार क्वेश्चन, बताओ मेरे को, कहाँ से देंगे?
एक छोटा चैप्टर है, घुमा फिरा के वही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. ये तो केमिस्ट्री की बात हो गई. फिजिक्स में क्या होता है, थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड है. और अभी पिछले जो 5 साल का ट्रेंड है ना आईसीएसई का फिजिक्स का, उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रिपीट हुआ है. मतलब दे आर ट्राइंग टू मेक इट मोर एप्लीकेशन बेस्ड, लॉजिक बेस्ड. So what they are trying to do is they are trying to give you questions based on applications. तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम आते हैं. मुझे लगता है 20-30% ही डायरेक्ट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज बेस्ड है, जो हम पढ़ के जाते हैं और हम आंसर लिख सकते हैं उसका. बाकी जो क्वेश्चन है सारे एप्लीकेशन बेस्ड है, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ता है उसमें. सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि फिजिक्स का चैप्टर पढ़ने से, हाँ डेफिनेशन ये सब तो लर्न करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स है उसके या जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो तो तुम्हें सॉल्व ही करने पड़ेंगे. उसमें भी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कर लो. फिर अगर तुम्हें टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज तुम्हारी हो गई, तुम्हें एक्स्ट्रा चाहिए, पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन कर लो. आई होप सबने खरीदी है पास्ट 10 ईयर्स वाली बुक, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज. हाँ सर। चैप्टर sir. वाइज टॉपिक हाँ वाइज सर। खरीदना बुक, ठीक है, पेपर वाइज मत खरीदना. चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बुक में क्या होता है कि पहले क्वेश्चंस आते हैं एक चैप्टर के, फिर उसके सोल्यूशंस होते हैं. तो तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं कि अच्छा ये चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग. सो व्हाट यू हैव एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. सॉल्विंग सर क्वेश्चंस मेरे इज द पास बेस्ट वे. चैप्टर वाइज नहीं है। ईयर वाइज ही लेना चाहिए. तुम्हारे पास कौन सा वाला है, ईयर वाइज है? ईयर वाइज है। हाँ, बट वो कभी काम आएगा पता है, वो फाइनल में काम आएगा, मतलब तुम्हारा सब सिलेबस होने के बाद. अभी क्या है कि अभी हमारे कुछ चैप्टर्स बचे हैं. सो इफ यू गो फॉर चैप्टर वाइज ना, इट विल बी, अगर खरीदना है तो खरीद लो वो चैप्टर वाइज. इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर योर प्रैक्टिस, बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम्हारा केमिस्ट्री का एक चैप्टर वीक है, तो तुम उसी चैप्टर पे फोकस कर सकते हो और उसी चैप्टर के पास 10 ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन को देख सकते हो, बार बार सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए. दैट्स इट, मोर पूरा देन एनफ. सेक्शन ही 100% 10 ईयर से ही आता है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बट दैट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्ट तो होंगे ना आसानी का. ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा क्वेश्चन कॉपी हाँ पेस्ट उठा के रख देंगे. क्लास 10th है आफ्टर ऑल, थोड़ा तो ट्विस्ट होगा क्वेश्चन. बट हाँ, अगर तुमने सॉल्व किया है ना तो तुम्हें कंटेंट पता होगा कि हाँ ये नाइट्रिक एसिड का है, ये उसका क्या बोलते हैं मेथड, लेबोरेटरी प्रिपरेशन का क्वेश्चन है, या फिर ये उसके ये यूजेस का क्वेश्चन है, या फिर ये टेस्ट है, टेस्ट नाइट्रिक एसिड का. ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से पार्ट से ये क्वेश्चन आया है. सो इफ यू हैव स्टडीड दैट पार्ट for answering such questions, it will be easy for you. You have to do that much hard work is required. ठीक है, समझ में आया तुमको? तो कल हाँ टेस्ट है सर। जीएसटी का और नाइट्रिक एसिड का. तो किसी को कोई अगर डाउट है जीएसटी या नाइट्रिक एसिड में तो मुझे बताओ वन बाय वन. पहले मुझे बताओ नाइट्रिक एसिड में कुछ डाउट है, क्योंकि छोटा चैप्टर है. स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का यही ब्यूटी है, सारे सारे चैप्टर्स छोटे हैं, सारे चैप्टर्स छोटे हैं. स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में 4 पार्ट है, चारों पार्ट छोटे हैं. यस श्रेया. Sir, can you explain about Ostwald Yes, process? yes. Let's go through it again. Ostwald's process. Ostwald इससे पहले वाला में है क्या? सर मेरे पास न्यू एडिशन है तो उसमें तो दिखा रहा है कि ऑस्टवर्ड्स प्रोसेस है। एक्चुअली क्या है इट इज जस्ट ये जो प्रिपरेशन है बेसिकली ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है. नाइट्रिक एसिड का ही प्रिपरेशन है ना ये. यस। तो ये दूसरे वाले में रहेगा. लेट मी गेट दैट. मैं देखता हूँ मेरे पास कौन से वाले में है.
सो मुझे लग रहा है कि ये अमोनिया में होना चाहिए। अगर इसमें नहीं है तो आई थिंक वी हैव टू सी इन विराफ दलाल। लेट मी सी हाउ मेनी विच बुक्स आई हैव ऑनलाइन। तो यहाँ पे एक हेबर्स प्रोसेस है, इसके साथ साथ ऑस्टवर्ल्ड भी था। या तो ये 9th में था। हाँ ये रहा, Ostwald process, yes. So this in, I think in new edition they have put it in the chapter nitric acid. Yes, sir. Okay. Can you all see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Great, great. Yes. Okay, let's go through this manufacture of nitric acid. This is the industrial method. तो अगर तुम ये चैप्टर देखो, इसमें बहुत सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। Let me just go through those methods first in short and then come back to the industrial method. Just a moment. मेरा सिस्टम कभी कभी स्लो हो जाता है। रुजान, कैन यू कम हियर? ये एसी बंद कर देना। थैंक यू। मोना, ये बंद करना, बहुत आवाज आ रहा है। ओके तो पहले तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन हमने देखा नाइट्रिक एसिड का। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया हमने पोटेशियम या फिर सोडियम नाइट्रेट के साथ, और उसका पूरा प्रोसीजर हमने देखा कि कैसे ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, फिर उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको ऊपर से कूल भी करते हैं और वो वाटर में एब्जॉर्ब होके नाइट्रिक एसिड, आई एम सॉरी, वो ब्राउन फ्यूम्स कंडेंस होके नाइट्रिक एसिड बन जाता है। ठीक है, सो इसके पूरे प्रिपरेशन की मेथड और फिर छोटे छोटे डिटेल्स यहाँ पे लोग ने बताए थे कि येलो कलर का होता है, ये येलो कलर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ये हमने लेबोरेटरी प्रिपरेशन में देखा। इसके बाद वाज देयर एनी अदर मेथड? नो नो, नथिंग। तो इस चैप्टर में हमने सिर्फ लेबोरेटरी प्रिपरेशन की एक ही मेथड देखी। उससे पहले वाले चैप्टर में, दैट इज अमोनिया में, हमको ये ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस सीखने मिलेगा, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं तुम सबके साथ। सो ये इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, इंडस्ट्रीज में यूज होती है। अ जर्मन केमिस्ट ऑस्टवर्ल्ड in 1914 he developed this Ostwald process. The process is explained in 3 steps. ये उसका फ्लो चार्ट है, या तुम बोलोगे इसका ये ऐसा एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है पूरे प्रोसेस का, जिससे पूरे प्रोसेस को हम याद कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो स्टेप 1 है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। सो इसमें क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर which is free from carbon dioxide and dust particles and dry ammonia in the ratio 10:1 by volume. मतलब dry air will be in 10 ratio, 10 parts, and
ammonia will be one part, is first compressed and then passed into catalytic chamber containing platinum gauze. यहाँ पे platinum का gauze मतलब एक ऐसा नेट जैसा होता है जिसके थ्रू ये मिक्सचर को पास किया जाता है. सो platinum acts as a catalyst. और इस चेम्बर का जो टेम्परेचर होता है दैट इज अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. दिस रिजल्ट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रोजन मोनोक्साइड. तो अमोनिया यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है और ऑक्सीडेशन हो जाता है अमोनिया का इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड द टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस एंड वी गेट नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोक्साइड प्लस water vapors basically and heat. This is an exothermic reaction and heat evolved maintains the temperature of catalytic chamber. मतलब तुम्हें फर्दर हीट करने की ज़रूरत नहीं है. तुमने इनिशियली ये कैटालिटिक चेम्बर को 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया, सो बाद में उसको कंटिन्यू हीट रखने की ज़रूरत नहीं है. ये जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा हीट इवॉल्व होती जाएगी बिकॉज इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द टेम्परेचर विल बी मेंटेन्ड. Now this nitric oxide is passed through a heat exchanger and there it is cooled down. The hot gases are then passed through a heat exchanger where they are mixed with air and passed into another cooling chamber called oxidizing chamber. तो पहले इसको हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास करते हैं कूलिंग चेम्बर में, जहाँ से उसमें एयर मिक्स होती है और एयर और नाइट्रिक ऑक्साइड के मिक्सचर को एक ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर के थ्रू पास कर सकते हैं. ठीक है. तो स्टेप 2 है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड. अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमें फर्स्ट स्टेप में मिला था ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर में, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है. सो वी गेट नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन एट अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है. अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के चेम्बर में मतलब एब्जॉर्प्शन टावर में पास किया जाता है, जहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर में मिक्स हो जाता है एंड वी गेट नाइट्रिक एसिड. द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टुगेदर विथ रिमेनिंग एयर, sometimes more air is added at this stage, is passed through the absorption tower, that is a steel tower filled with quartz stone. Do you guys know what is quartz? किसी को पता है quartz क्या होता है? Quartz is a mineral. ठीक है. It is found under the earth's crust and it has certain catalytic qualities. ठीक है. ये क्वार्ट्स को इसलिए रखते हैं बिकॉज टू रिड्यूस द कोरोसिव इफेक्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड. ठीक है. सो एक स्टील टावर में क्वार्ट्स भरा होता है और लेयर्स में और उसके ऊपर से वार्म वाटर ट्रिकल करता है. तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड ये वार्म वाटर के साथ मिक्स होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वार्म वाटर के साथ मिक्स होकर नाइट्रिक एसिड बन जाता है. द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड. सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन gives you nitric acid. Nitric acid obtained at the bottom of the tower is concentrated above 50 degrees Celsius. The above acid on further distillation मतलब उसको और अगर प्यूरिफाई करेंगे we get 68% pure nitric acid. This acid is concentrated nitric acid which is used in laboratories. So Ostwald's process is a easier way to obtain nitric acid on a commercial scale, मतलब higher larger scale पे. Concentration of nitric acid up to 98% concentration, fuming nitric acid is obtained by distilling 68% nitric acid over concentrated sulfuric acid. Pure 100% nitric acid is obtained by strongly cooling 98% acid. ये सब information है जो तुम्हें learn करनी है. When colorless crystals of pure nitric acid get separated at minus 42 degrees Celsius. So that is your pure 100% nitric acid. In the manufacture of nitric acid, higher ratio of air is used because oxygen is only 1/5 in the air and it is required in all the 3 chambers. So air का ratio यहाँ पे ज़्यादा रखा जाता है because
it at every stage in the production of nitric acid, air is required, oxygen is required to combine first to convert nitric oxide into nitrogen dioxide, and then in the manufacture of nitric acid from nitrogen dioxide when it is mixed with water. And quartz is acid resistant, जो मैंने तुम्हें बताया था कि जो corrosive action है acid का, उसको उससे क्वार्ट्ज को कोई असर नहीं होता है, इसलिए क्वार्ट्ज यूज होता है. व्हेन पैक्ड इन लेयर्स इट हेल्प्स इन डिसॉल्विंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यूनिफॉर्मली इन वाटर. तो एक कैटलिस्ट जैसा ही एक इसका एक्शन है. अब ये इसका फ्लो चार्ट है जो बहुत अच्छे से तुम्हें काम आएगा. मैं ये पीडीएफ, क्या तुम सबके पास कंसाइज बुक है, फिजिकल बुक? Yes, sir. तो उसमें यू विल फाइंड दिस फ्लो चार्ट ऑफ ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस. I don't have the book. Who is this? सर Yes. हमारा स्कूल का बुक ही जी दलाल वाला है. हाँ, बट मैंने तुम्हें बोला था कि कंसाइज बुक खरीद लो, इसलिए मैंने बोला था बिकॉज उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से बताई है. बट अगर विराफ दलाल में भी ये अगर चार्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें इसका पीडीएफ भेज दूंगा. बट आई स्टिल सजेस्ट कि कंसाइज बुक खरीद लो, तुम्हें एंड में जो रिवीजन करना है ना उसमें बहुत काम आएगा, बिकॉज इट हैज़ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नोट्स. तो जो नोट्स हम बनाते हैं ना वैसे ही इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बुक में प्रिंटेड वे में दिया हुआ है. सो यू डोंट हैव टू मेक सेपरेट नोट्स, यू जस्ट हैव टू go through the book and quickly you can revise the whole chapter. इसलिए ये concise book अच्छा है. So if you don't have it, please buy it. Okay? Yes, I'll buy it. Yeah, please buy it. Please buy it. It is Sir? helpful. Yes, please. सर 2 years ago कंसाइज था या फिर विराट जी दलाल था? देखो हमेशा से विराफ जे दलाल ही रहा है बुक. बहुत ही आई थिंक संजीवनी के जो मेरे पहले के स्टूडेंट है दे यूज टू फॉलो कंसाइज, बट Okay, sir. बट आई डोंट नो नाउ. अभी मुझे नहीं पता है. हमेशा से विराफ दलाल बुक प्रिफर करते हैं स्कूल के टीचर्स. आई डोंट नो व्हाई, बट there are certain school teachers who follow concise books and they also tell the children to buy this book and keep it. I have always suggested this book because मैंने दोनों बुक फर्स्ट हैंड कंपेयर करके देखा है और मुझे लगता है कि बच्चों के लिए केमिस्ट्री को एक्सेप्ट करना ये बुक से ज़्यादा इजी हो जाता है. अदरवाइज दैट विराफ दलाल बुक इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिकॉज उसमें सब टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है. देर आर नो पैराग्राफ्स. इसमें पैराग्राफ वे में, सेंटेंस वे में तुम्हें सारे इंफॉर्मेशन दिए विच इज़ ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड रिलेट विथ. सो आई पर्सनली प्रिफर कंसाइज. तो श्रेया तुम्हें समझ में आया ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस? Yes, sir. Okay, so I will share this PDF with you if you don't have it. Great. Any other doubt in this chapter? Nitric acid? Sir, can we use other chemicals in the ring process in place of the chemicals mentioned? Which process? Brown ring. Brown ring? I'm not sure, yeah. I'm not sure. I think so. Maybe. I'm not sure, but because I've not come across anything else. If you go on internet and find some brown ring test on internet, they might use some other chemicals. But I'm not sure. I've not come across anything like that. So this is a question of research. I can maybe find it out. But the problem is it will not be accepted by your ICSE board because according to them these are the chemicals which are to be used for brown ring test, specifically nitric acid. And I don't know if in the place of sulfuric acid or ferrous sulfate something else can be used. I'm not sure about that. Yes, please. Any other questions from the exercise or anything like that?
ओके, शेल वी गो टू जीएसटी? जीएसटी में किसी को कोई डाउट है? सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब सोच रहे क्लास जल्दी खत्म हो जाए। नहीं है हमारा डाउट, कोई डाउट नहीं है हमें, हमको जाने दो बस यहाँ से। ऐसा है क्या? No, sir. You have any doubts in GST? Please tell me. वैसे कैसा लगा तुम्हें ये चैप्टर जीएसटी, ये तो बताओ। चलो छोड़ो, डाउट छोड़ो। Let's Sir, two of the questions were a bit confusing. which exercise बेटा? Sir, first B. हाँ, let me go through them. Let's discuss those यार। तुम्हें क्या confusing लगा देखते हैं, चलो। Sir, question 8. 1B right? Yeah. अच्छा, इसमें तो दो ही एक्सरसाइज है ना, 1A 1B। Yes. Okay, let me see. Sir, but I got. अच्छा, you got it, but let's discuss ना। मेरे Yeah. को भी confusing लग रहा है कि नहीं, मुझे भी देखना है। अच्छा, for a dealer A, the list price of an article is 9,000, which he sells to the dealer B at some lower price. अच्छा, कौन है ये? Please turn off your microphone. बहुत sound है। Okay, now it is perfect. अच्छा, so for dealer A, the list price of an article is rupees 9,000, which he sells to dealer B at some lower price. अच्छा, लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस होता है, ये तो तुम्हें पता ही है। चलो किसी से हेल्प लेते हैं ये क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन करने के लिए। प्रियम, यू आर देयर? प्रियम, हेलो प्रियम। Priyam, I can't hear you. I can't hear you. Muskan, you're there? Yes, sir. Priyam, you're not audible. Maybe log in again. I will talk to Muskan in the meanwhile. Muskan, Yeah, let's sir. discuss this question, na, 8th one. For a dealer A, the list price of an article is 9,000. So list price is the mark price, right? Yes. Okay. So whatever discount or whatever will be given will be on the mark price. Acha, which he sells to dealer B at some lower price. Further, dealer B sells the same article to a customer at its list price. I'm sorry. If the rate of GST is 18% and dealer B paid a tax under GST equal to rupees 324 to the government. Acha, so GST paid by dealer B is equal to rupees 324. Now, can you tell me GST का क्या फॉर्मूला है? GST का फॉर्मूला That means like, अरे मैं बोल ही दूंगा फिर तो फॉर्मूला। जीएसटी कैसे कैलकुलेट करता है? लाइक अगर जीएसटी 324 डीलर बी ने पे किया, सो व्हाट इज इट लाइक, व्हाट डज इट मीन? 324 plus. नहीं, वैसे नहीं। जीएसटी इज परसेंटेज नहीं, वैसे नहीं। टैक्स चार्ज्ड माइनस टैक्स पेड।
यही होता है ना फॉर्मूला, जीएसटी इज इक्वल टू टैक्स चार्ज माइनस टैक्स Yes, पेड। sir. यस 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 यस। तो if the rate of GST is 18% and dealer B paid a tax under GST equal to rupees 324, मतलब उसने रुपीस कितना पे किया? 324 जीएसटी पे किया उसने। अच्छा, उसने टैक्स चार्ज कितना किया? तो उसने टैक्स चार्ज किया 18% ऑफ 9000, क्योंकि उसने लिस्ट प्राइस में डीलर बी ने कस्टमर को आर्टिकल बेचा, तो उसने 18% ऑफ 9000 दैट इज द लिस्ट प्राइस वो चार्ज किया होगा। अच्छा, उसने कुछ प्राइस विच इज लोअर देन 9000, क्योंकि डीलर ए ने डीलर बी को लोअर देन लिस्ट प्राइस पे आर्टिकल बेचा था, मुस्कान। सो हाउ मच टैक्स ही मस्ट हैव पेड? 18% ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस। उसने कितने में खरीदा? वी डोंट नो ना, सो दैट कॉस्ट प्राइस वी आर गोइंग टू टेक इट एज x। आर यू गेटिंग इट, मुस्कान? Yes, sir. Yeah, so can you tell me what is 18% of 9000? कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करना तो पड़ेगा। अब देना किसी बुक, आई एम जस्ट सिटिंग विद द टेक्स्ट बुक नो ओवर प्रॉब्लम, हियर। कोई और भी बता Just सकता है अगर second, sir. फटाफट कैलकुलेट करके, इट्स ओके। Sir, it's 1620. 1620. 162. 16 162. 1620 नीत 1620 होना चाहिए, माइनस 18/100 मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, सो 18x बाय 100 इज इक्वल टू 1620 माइनस 324। कैन यू टेल मी क्या होगा ये? 1620 माइनस 324। One 1296. सॉरी, 1296. 1296. okay, so x is equal to 1296 multiplied by 100 divided by 18. Simplify this please. Sir, 7200. Yes, sir. 7200. Okay, so मैंने यहाँ पे पहले एक स्टेटमेंट लिख दिया है जो मैंने पहले नहीं लिखा था। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर डीलर बी बी एक्स। सो एक्स आया रुपीज 7200, एक्स आया रुपीज 7200। ठीक है, सो डीलर बी ने 7200 में आर्टिकल ये खरीदा था। अच्छा, जब उसने ये आर्टिकल खरीदा तो हमको क्या पूछा है पता है? 8 में फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर बी। फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर बी। ठीक है, सो अमाउंट पेड बाय डीलर बी is equal to 7000, Sir, I think it is 8496. okay, 7200 plus 18% of 7200. And can you tell me what will be 18% of 7200? 1296. So it will be 8496. कोई प्लीज कंफर्म करो इसको। Yes, sir. It is Can you 8496. please check the answer behind your book?
It's correct, sir. Yeah, so this is how you solve this kind of question. यहाँ पे confusion कहाँ पे आता है पता है? GST में. So जब ये लोग बोलते हैं कि डीलर बी पेड टैक्स अंडर जीएसटी इक्वल टू 324 टू द गवर्नमेंट, यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है. मतलब कुछ लोगों को लगता है कि डीलर बी ने 324 रुपीज टैक्स पे किया, लेकिन वो टैक्स पेड नहीं है, वो जीएसटी पेड है. ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है जीएसटी के अंडर 324 लिखा है, टैक्स पेड के अंडर मैंने नहीं लिखा है. एक्चुअली टैक्स पेड तो 1296 है, बट क्योंकि डीलर बी इज अ मिडल मैन, वो क्या कर रहा है, 1296 पे कर रहा है. किसको पे कर रहा है? डीलर ए को. ठीक है, और डीलर ए फिर ये टैक्स गवर्नमेंट को दे देता है. लेकिन वो टैक्स कलेक्ट भी तो कर रहा है, चार्ज भी तो कर रहा है. किससे चार्ज कर रहा है? कस्टमर से. कितना चार्ज कर रहा है वो कस्टमर से? आई थिंक 1620 चार्ज कर रहा है. तो ये दोनों का जो डिफरेंस है 1620 और 1296 का, वो 324 है. दैट इज द जीएसटी पेड. नाउ इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, दैट इज द जीएसटी. डीलर बी पेड अ टैक्स अंडर जीएसटी टू द गवर्नमेंट. ये 324 इज द जीएसटी पेड बाय द डीलर बी. तो टैक्स पेड और जीएसटी पेड में फर्क है. ठीक है, इसको तुम अगर क्वेश्चन अच्छे से रीड करके समझने की कोशिश करो तो यू विल गेट इट. अदरवाइज यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने सॉल्व करके डिस्कस किया ये क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है. दिस अ गुड क्वेश्चन. और कोई ऐसा क्वेश्चन है? यस. Sir, I took the CP of B as 9,000 minus X. Will it be okay? Okay, you can do that. You can do that, but that will make your calculation little complicated. But if you are good at algebra, there is no problem here. You can take it, no problem. But what I suggest, ये जो method मैंने दिखाया है ना यहाँ पे, this is, you can Yes, say, sir. the most simplest. मतलब इससे simple नहीं हो सकता ये. ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. Great, great, great. कुछ और पूछना है, डिस्कस करना है, प्लीज टेल मी. वैसे तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, सिर्फ तुम्हें ये इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है. ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए है और कुछ नहीं है. देखो पूरा जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी का, दैट इज परसेंटेज बेस्ड. तुम्हारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो जीएसटी में तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा. हाँ, सिर्फ जो रूल्स है ना, रूल्स के कैसे जीएसटी को बाइफरकेट किया गया है, कैसे उसको कलेक्ट करते हैं इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट गुड्स मूवमेंट पे, वो थोड़ा सा ट्रिकी है. बाकी तो मुझे पूरे चैप्टर में मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट कोई चीज़ ऐसी है नहीं. इट कैन बी कंफ्यूजिंग बिकॉज ऑफ द only because of how the question is made. So for that you need only, you just need to do the practice. Sir, can you solve the 11th one? Yes, sure. Of 1B, right? Yes, sir, I had the same. Yes. Sir. Okay, great. Let's see. Yes, Priyam, you're saying something? No, sir, I had the same. 11th one. Yes, sir. Okay, so it says that for a trader, marked price of refrigerator is 15680. Mark price. ठीक है, exclusive of GST. अच्छा, GST percent is 12%. Rate of GST. Rate of GST is 12%. Exclusive of GST का मतलब क्या होता है? प्रियम, can you answer now? Okay, I can't hear him. Anyways, Gagan, a customer for this refrigerator, asks the trader to reduce the price of a refrigerator to such an extent that its reduced price plus GST is equal to the mark price of the refrigerator. Find the required reduction.
ठीक है, तो गगन बोलता है ये ट्रेडर को, देखो गगन को हम लोग एंड यूजर ले सकते हैं। एंड यूजर क्या होता है? एंड यूजर इज द फाइनल कस्टमर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं कि गगन आगे ये रेफ्रिजरेटर किसी और को बेच रहा है या खुद यूज कर रहा है, वैसा कोई क्वेश्चन में इसका कोई मीनिंग भी नहीं है। ठीक है, सो वी कैन टेक गगन एज अ एंड यूजर। सो गगन क्या बोलता है कि ये रेफ्रिजरेटर की जो मार्क प्राइस है उसको आप कम करो और उसमें डिस्काउंट दे दो मुझे, और जो रिड्यूस्ड प्राइस है उस पर आप 12% जीएसटी ऐड करो, और जो टोटल प्राइस आना चाहिए वो 15680 ही होना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लेट द रिड्यूस्ड प्राइस बी ₹X। रिड्यूस्ड प्राइस को x ले सकते हैं। तो गगन ये बोल रहा है कि x प्लस 12% ऑफ x, रिड्यूस्ड प्राइस पे अगर हमने जीएसटी लगाया 12% ऑफ x, तो हमें 15680 ही मिलना चाहिए। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 12 अपॉन 100 टाइम्स x इज इक्वल टू 15680। सो दिस विल बी 112x upon 100 is equal to 15680. So x is equal to 15680 times 100 upon 112. Can anybody solve this, please? One four triple zero. Can anybody confirm this, please? Yes, sir. It's 14. So this is the reduced price of that refrigerator. Now what they have asked is find the required reduction. So reduction is original price, that is 15680, minus the new price, reduced price 14,000, that is 1680. Now कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर परसेंटेज में दिया होता है, वो लोग ने मेंशन नहीं किया कि रिडक्शन ढूंढना है या रिडक्शन परसेंटेज ढूंढना है, तो हमारे माइंड में तो रिडक्शन ढूंढ के हमने दे दिया। बट टू बी श्योर and to be to be sure that you don't lose marks, you just find the reduction percentage as well. Reduction percent is reduction 1680 upon original value, that is 15680 multiplied by 100. ये करोगे तो रिडक्शन परसेंटेज आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, मतलब दिस इज जस्ट टू बी सेफ। अब मुझे बताओ कि फाइनल आंसर 1680 है या परसेंटेज में या कुछ और? It's 1680. ग्रेट, तो वी डोंट हैव टू फाइंड द परसेंटेज। बट कभी कभी ऐसा होता है कि रिडक्शन है तो परसेंटेज में वो लोग आंसर देते हैं, तो वी कैन फाइंड दैट ऑल्सो। ठीक है, इजी था ना ये क्वेश्चन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जीएसटी बेस्ड एक्चुअली इसमें कुछ था नहीं, दिस इज अ सिंपल परसेंटेज प्रॉब्लम। कोई और डाउट है जीएसटी में तुम लोगों को? No, sir. ग्रेट। ठीक है, so I hope that you guys are ready for tomorrow's test.